بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا بیٹا حسین محی الدین، اس کا ایک کلپ رات مجھے ایک دوست نے سینڈ کیا۔ موٹیویٹ ہوتا ہو کہ سپورٹس اور کھیلوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا کسی کے لیے دینی فریضہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھیلوں کو صحابہ کرام کے درمیان بہت اہمیت سے نوازا۔ جس طرح ہم کرکٹ میچ کو بذریعہ ٹی وی یا اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کیا اس کی بھی کوئی حجت اسلام میں ملتی ہے؟ تو حاضرین محترم، ہمیں ملتی ہے بالکل۔ یہ روایات میں آتا ہے ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا، افریقنز کا۔ وہ ہر سال اپنی گیمز سے متعلق، وہ جیسے اولمپکس میں یا جمناسٹکس یا اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جو گیمز اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تو وہ لامحالہ بات ہے کہ اس کے میچز نہیں ہوتے تھے، تو وہ اس کا پورا ایک شو تیار کیا ہوتا تھا۔ وہ ہر سال مسجد نبوی کے سامنے اپنی ان پروفیشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے اور پورا شہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت وہ جمع ہو کے میچ کو دیکھا کرتا تھا، اور اس کو حضور اپریشیٹ فرماتے، اور ہر سال یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ عموماً کئی احباب کئی بار جو تھوڑا متشدد دینی رجحانات کے مالک ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں نا یہ وقت کا ضیاع ہے بالکل، تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے اس کے لیے بھی حجت میسر آتی ہے کہ میچز کو دیکھا جانا چاہیے۔ روایات میں ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین، ان کو بھی لے جا کر میچ اپنے ساتھ دکھایا۔ اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میچ دیکھنا سنت ہے، کرکٹ میچ دیکھنا، اور استدلال کیا کر رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا کھیل دیکھا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر، اور اس کے جو لفظ ہیں کہ سبھی صحابہ کو ساتھ لے کر، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ایل سی ڈیز اور سکرینوں پر بیٹھ کر جس طرح ہم کرکٹ میچ دیکھتے ہیں اور عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، تو اس کے جواز پہ کہہ رہا ہے کہ سید عائشہ کو بھی حضور نے وہ کھیل دکھایا۔ تو میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں، پہلے تو یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے مکالمہ کیا جائے، کیونکہ یہ انگریزی وظیفہ خار اور انگریز کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ باپ بیٹے، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ اپنے آقاؤں کی غلامی کرنا۔ وہ علامہ اقبال نے فارسی میں بڑا خوب شعر کہا تھا، سری را ہم بچو بش دہ کے آخر حقے دارد بخر پالاں گرے او۔ اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، جو فارسی جانتے ہیں وہ اس کا ترجمہ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ پالان گر ان کا ہے انگریز، تو یہ اس کے خر ہیں، گدے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیشہ یہ کردار ادا کیا ہے کہ امت مسلمہ کو دین سے دور کرنے کے لیے، یہودیت اور انگریزیت کے قریب کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے فتوے جھاڑے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ آج کل کافی ٹرینڈنگ میں ہے اس کا یہ بیان، اور اس پہ عنوان ہوتا ہے کہ میچ دیکھنا سنت ہے، الیاذ باللہ، تو بندہ ناچیز اس کی اس جہالت کا رد کرنا چاہتا ہے اور واضح کرنا چاہتا ہے کہ آج کا میچ، یہ کرکٹ میچ جو ہے، اور جو وہ کھیل تھا جو حبشیوں نے پیش کیا، اس میں فرق کیا ہے، اور دونوں کا حکم شرعی کیا ہے، اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر کرکٹ میچ کھیلنا اور پھر دیکھنا یہ حرام بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کھیل، وہ عید کے دن کا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، کچھ حبشیوں نے آ کر مسجد نبوی شریف میں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسجد نبوی شریف میں نیزہ بازی کی مشق اور اس کا کھیل پیش کیا۔ ہمارے اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ کھیل جو دفاعی تربیت کے لیے یا دشمن پر حملے کی تربیت کے لیے یا اپنے جسم کو مضبوط اور چاق و چوبند رکھنے کے لیے مختصر وقت میں
यानी जिसमें कोई और अम्र शरी ना रह जाए, ऐसे वक्त में खेलना वो शरन जायज है। और जब वो खेलना जायज है तो ऐसे खेल को खास वक्त में, जब कोई और फरीजा शरी ना रह रहा हो, कोई और फरीजा शरी का इनकार ना हो रहा हो, उसका तलफ होना लाजिम ना आ रहा हो, तो फिर उसको देखना भी जायज है। अब नेजाबाजी का जो खेल था ये जंगी तरबियत है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुरादा फरमाया और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी मुरादा फरमाया। क्रिकेट मैच में पूछता हूं कौन सी तरबियत है, कौन सी जंगी या दिफाई पोजीशन में ये क्रिकेट मैच फायदा देता है कि इसके लिए घंटों खर्च कर दिए जाते हैं, न नमाज का पता, न अल्लाह की इबादत का पता। कितने फराइज हैं जो इस मैच की वजह से छोड़ दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी इसमें खराबी यह है कि काफिरों के साथ खुशगपियां और उनकी देखभाल, जब टीमें आती हैं तो काफिरों को इज्जत और एहतराम दिया जाता है, उनको महफूज किया जाता है और मुसलमानों को तंग किया जाता है, रोड बंद करके, रास्ते बंद करके। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया? अंग्रेजी वजीफा खार डॉक्टर, क्या मेरे आका करीम ने कोई ऐसा मैच खेलने की इजाजत दी कि जिसकी वजह से मस्जिदों को ताले लग जाए, नमाजें छूट जाएं, अल्लाह की इबादत को तर्क कर दिया जाए, काफिरों की ताजीम लाजिम आए? दज्जाल कहां नेजाबाजी का खेल और कहां ये अंग्रेजी मैच दोनों को एक कर रहा है और फिर कह रहा है कि ये सुन्नत है। अरे बेवकूफ, अश्शय इज़ा साबता साबता बेजमी लवाज़िम ही, कोई भी शय जब साबित होती है तो तमाम लवाजिमात के साथ साबित होती है। हर चीज का हुक्म उसके लवाजिमात के साथ बयान किया जाता है। क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे लवाजिमात हैं कि जो शरन हराम है। अब क्रिकेट मैच देखने का जो मामला है, स्टेडियम में बैठकर लाइव जहां देखा जाता है, वहां बैठ के देखना हराम है। क्यों? इसलिए कि वहां जनो मर्द का इख्तिलात होता है, औरतें मर्द सब एक ही जगह बेपर्दगी बेहयाई हो रही होती है और तालियां बजा के औरतें नाच रही होती हैं। जब छक्का या चौका लगता है तो तुम्हारी औरतें नाच रही होती हैं और मर्द नाच रहे होते हैं और वहां पर बेहुदा लिबास पहनकर बैठकर वो मुलाजा कर रहे होते हैं। नमाजें भी खत्म, तमाम शरी हुदूद का भी कोई ख्याल नहीं है। क्या इसको, इस देखने को अम्मा आयशा के देखने पे क्यास करेगा? जलील, तूने वो रिवायत के लफ्ज क्यों नहीं पढ़े कि सैयदा फरमाती हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी थी, आपकी ओट में थी, कोई मुझे देख नहीं रहा था, कोई हबशी मुझे नहीं देख रहा था, ना कोई और माज़अल्लाह सैयदा के साथ खड़ा था गैर महरम, बल्कि फरमाती मैं हुजरे में थी, हुजूर दरवाजे पर थे, मैं हुजरे के अंदर से देख रही थी, ओट से देख रही थी, हुजूर के कंधे के ऊपर से देख रही थी। तू कह रहा है कि ये बैठ के देखना एलसीडियों पर, ये उससे साबित हो रहा है? कुछ खुदा का खौफ करो। कहां वो, कहां ये जिसमें मस्जिदों को ताले लगवा दिए गए मैच के लिए और रोड बंद कर दिए जाते हैं उन बेगैरतों की हिफाजत के लिए, मुसलमानों को तंग किया जाता है। और हमारे नाम नेहाद कनेडियन शेखुल इस्लाम क्या कह रहे हैं, उनकी औलाद क्या कह रही है कि ये सब सुन्नत है देखना और ऐसा काम करना जो है ये सुन्नत है। अलियाज़ु बिल्लाह। जो शख्स ये कहे कि क्रिकेट मैच देखना सुन्नत है माज़अल्लाह, ऐसा शख्स कम अज कम गुमराही की हद तक पहुंच जाता है। बेशुमार ऐसे मफासिद हैं जो क्रिकेट मैच के अंदर मौजूद हैं, जो कि उस खेल में नेजाबाजी, क्यों, जो जिसका मकसद तरबियत है जंगी, और क्रिकेट महज लहव लैब के अलावा और कुछ नहीं है। वकुल्लु मा अहदसहु शैतान व फ़अलहु गाफिलून फहुव हराम।
हर वो खेल जिसको शैतानी लोग इजाद करें, शैतान की इजाद हो और उसको गाफिल लोग खेलें, वो हराम होता है। तो कहाँ नेज़ाबाजी का वो मुकद्दस फन और कहाँ क्रिकेट की ये खबासतें, और फिर कहाँ वो नेज़ाबाजी का फन देखना, वो भी चंद लम्हों के लिए, थोड़े से वक्त के लिए, जिसमें ना कोई नमाज कज़ा हो रही है, ना कोई और दीनी फरीज़ा कज़ा हो रहा है। और कहाँ ये 12-12 घंटे 10-10 घंटे बैठकर टीवियों पर या लाइव बैठकर फहाशी के साथ, उरियानी के साथ, औरतों मर्दों के इख्तिलात के साथ देखना। क्या तुझे ये दोनों एक नजर आते हैं? तो ख्याल रहे क्रिकेट मैच देखना हराम है, हराम है, हराम है। और नेज़ाबाजी और जंगी मशकें जो है उनको देखना जायज है, बशर्ते के उनमें भी कोई शरई कबाहत, कोई शरई तौर पर नुकसान लाजिम ना आता हो, ना कोई नमाज छूटती हो, ना कोई। तो धोखा ये देते हैं कि आधी बात पढ़ी, आधी नहीं पढ़ते, अवाम को बेवकूफ बनाया। अब कौन बुखारी देखे अवाम में से? उन्होंने तो कहा जी शेखुल इस्लाम का बेटा है। ये तो हमें पता चल गया कि ये शेखुल इस्लाम का बेटा कितना बड़ा धोखा दे रहा है, ये तो गमा जानते हैं। और मुझे अफसोस है इस खबीस की वजह से लोगों ने उसके उन्वान दिए हुए हैं कि मैच देखना सुन्नत है। क्या मेरे आका ये फजूल काम देखने के लिए दुनिया में आए थे? हुजूर तो फरमाते हैं कि फजूल कामों से बचो, और ये क्या फजूल कामों को सुन्नत साबित करने के दरपे हैं। तो मैंने बता दिया कि वो खेल और था, ये और है। उस खेल में कोई शरई कबाहत और खराबी नहीं थी, इसमें फी नफ्स से ही खराबियां हैं। और उसको देखना वो एक खास मखसूस वक्त में था और उसमें कोई शरई खराबी लाजिम नहीं आ रही थी। जबकि इन मैचों को देखना, इनमें बेशुमार शरई खराबियां हैं, जन व मर्द का इख्तिलात होता है और बेपर्दगी होती है, नामहरम औरतों को देखा जाता है। ये इसलिए ये हराम है, हराम है, हराम है। इसको उस पर क्यास करना ये कोई कनेडियन जाहिल डॉक्टर का ही काम हो सकता है, कोई अक्लमंद आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें इन अंग्रेजों के वजीफा खार स्कॉलर्स से महफूज फरमाए और दीन हक की सही तर्जमानी करने वाले, सही दीन को हम तक पहुंचाने वाले उलमा और दानिश्वर और स्कॉलर्स हजरात जो हैं, उनका साया हमारे ऊपर तादेर कायम फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अवाम से ये कहूंगा कि ये दज्जाल हैं, अंग्रेज के वजीफा खार हैं, इनकी बातों पे ध्यान न दिया करो, ये तुम्हारा ईमान बर्बाद करेंगे। तुम्हें ये आज ये कह रहा है, कल को कोई और बेगैरती को कहेगा कि ये भी हुजूर ने फरमाया था, ये भी फलां हदीस से साबित हो रही है। इन लोगों को पकड़ो जहां ये नजर आए, ना चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा, ना सर पे टोपी, ना कोई शरी शक्ल, ना कोई सूरत में दीन की झलक नजर आती है, और दीन की तर्जमानी करने के लिए बैठ गए। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि चीस्त यारा बाद अज़ां तदबीर माँ, रुख सुए बुतखाना दारद पीर माँ। उसने कहा जी अब हम क्या करें, जो हमारे राहबर बने हुए हैं वो खुद बुत परस्ती पे लगे हुए हैं, अब हम किधर जाएं, अवाम किधर जाए बेचारी। दीन का लिबादा ओढ़ कर यहूद और नसारा की वो एजेंटियां करते हैं, गुलामियां करते हैं। तो ये लोग इस काबिल कतन नहीं है कि इनसे दीन लिया जाए। ये दीन के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, रसूलुल्लाह के दुश्मन है। अल्लाह ताला हमें इनके शर से महफूज फरमाए।